ये स्टूडेंट्स होप कि आप सब ठीक से होंगे। आज हम देखेंगे another type of ecological interaction called predation. Predation, like parasitism, is also a negative interaction in which one organism is benefited and other is harmed. Like parasitism, predation is also a negative interaction in which one organism is benefited and other is harmed. The individual that gets benefited in predation is called as predator. And the individual that's harmed is known as prey. Because of involvement of two different individuals, predator and prey, in case of predation, this predation is otherwise called as predator-prey interaction. जिस तरह हम पैरासाइटिज्म में देखते थे होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, एक और नाम उसका, इस तरह हम प्रीडेशन को एक और नाम दे सकते हैं प्रीडेटर प्रे इंट्रैक्शन. ओके, दिस प्रीडेशन इज अ पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन in which one individual is benefited called predator and other individual is harmed called as prey. ठीक है, जब भी हम देखेंगे ये predator prey हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाता है टाइगर अटैकिंग लाइन, आई मीन टाइगर और लाइन अटैकिंग द डियर. जिस तरह अगर मैं आपको आसान शब्द में बोलूं, यहां से मैं लिखूंगा predator, यहां से मैं predator लिखूंगा और यहां से मैं प्रे लिखूंगा. यहां से प्रीडेटर, यहां से प्रे. फॉर इंस्टेंस पहला जो हम देखेंगे दैट इज टाइगर या इवन लाइन. टाइगर और लाइन ये प्रीडेटर है. किस पे फीड करता है, किसको किल करता है, किसको कैच करता है? ये करता है नॉर्मली डियर को. डियर is here the prey and tiger or lion is the predator. इसको फायदा मिल रहा है, इसको फूड मिल रहा है and deer gets killed, इसको नुकसान हो रहा है. एक और चीज जो हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, स्पैरो जो है बर्ड, ये खाते हैं सीड्स, प्लांट के सीड्स. इट्स आल्सो प्रीडेशन. इस सीड फीड करता है, यहाँ सीड बन गया प्रे और ये स्पैरो बन गया प्रीडेटर. Likewise, we have cattle or we have herbivores. Okay, देखेंगे cattle, goat हो या cattle हो, they basically eat grasses. Here the grass जो है, grass जहाँ पे बन गया prey. It's no less than, I mean that different from that normal predation. So in case of predation, one individual gets benefited, other gets harmed. The individual that gets benefited is called as predator and the individual that's harmed is called as prey. That's why this predation is otherwise called as predator-prey interaction. Most common examples जो हम day to day life में देखते हैं, tiger or lion eating the deer. Here tiger is the predator and deer is the prey. Likewise sparrow, it's a bird, okay, eating the seed becomes prey here. Likewise cattle eating the grass. तो grazer जो है they also show sort of predation with it. Anyway, अब okay, now we have basically this predation. This predation is a type of interaction due to which the food energy that is fixed by green plants, herbivores, I mean these are what we call as autotrophs, it goes to the herbivores, then it goes to carnivores and so on. Means this predation is a type of interaction, it's a means by which the energy fixed by green plants goes to higher trophic levels. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, इट इज द सन, सोलर एनर्जी. दिस सोलर एनर्जी इज फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड एनर्जी ये मतलब प्रोड्यूस करते हैं. विद द रिजल्ट जो ये फूड आ गया, इमेजिन इफ देयर आर नो प्रीडेटर्स, अगर प्रीडेटर दुनिया के अंदर नहीं होंगे तो ये प्लांट करेगा फूड प्रोड्यूस, तो किस काम का है? इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी हो जाएगी. तो विद द रिजल्ट दुनिया के अंदर एक अल्लाह ने पैदा किया है एक इंट्रैक्शन व्हाट वी कॉल्ड एज फूड चेन, जिसकी मदद से जो फूड एनर्जी स्टोर है ग्रीन प्लांट्स में,
इसको हर्बीवर खाता है, तो प्लांट की एनर्जी पहुंच गई हर्बीवर तक, कैटल तक, ग्रेजर तक, फिर ग्रेजर को खाता है, फॉर एग्जाम्पल कैटल है या गोट है, इनको खाते हैं फिर कार्निवोर्स, तो ये फूड एनर्जी चली जाती है उनके अंदर, फिर टॉप कार्निवोर्स लाइन टाइगर के अंदर चली जाती है। गो ये एक मैकेनिज्म है, दिस प्रीडेशन इज ए मैकेनिज्म, इट्स ए मीन्स by which the food energy that is present, that is fixed basically by these green plants, it moves to higher energy trophic levels, higher trophic levels we say. Okay, हम क्या लिखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखो, it is a means, it is a means by which, it's a means by which food energy, it is a means by which food energy fixed in green plants, fixed in green plants, जो फोटोसिंथेसिस इन्होंने की, जो फूड की फॉर्म में एनर्जी मौजूद है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ओके, ट्रांसफर्स टू higher trophic levels, transfers to higher trophic level. देखो, it's a means, it's a mechanism by which, okay, food energy fixed in green plants is transferred or transfers to higher trophic levels. वही जो मैंने आपको बोला, ग्रीन प्लांट ने जो सोलर एनर्जी फिक्स की फूड के अंदर, फिर इसको खाता है हर्बीवर, इसको खाता है फिर कार्निवोर, तो अल्टीमेटली ये पहुंच जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल्स तक। तो दिस प्रीडेशन इज अ मैकेनिज्म बाय विच फूड एनर्जी फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट्स मूव्स टू अदर हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, नाउ ओके, जो ये प्रीडेटर है, प्रीडेटर अपने सारे प्रेज को एक साथ खत्म नहीं करेगा। अगर प्रीडेटर ने सारे प्रेज को एक ही समय खत्म किया, इसकी वजह से ये प्रीडेटर क्या खाएगा आगे? These predators are very much prudent, they are very careful, they eat prey but in a very sequential manner. ये एक ही साथ प्रे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, they are somehow prudent, careful. ओके, ये जो ये प्रीडेशन है, प्रीडेशन बहुत खतरनाक जो है, it is very much problematic we say somehow in case of herbivore, I mean these green plants, because plants unlike animals they cannot move. प्रीडेटर आ गया, फॉर एग्जाम्पल डियर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एज कम्पेयर टू द लाइन, एज कम्पेयर टू टाइगर। अगर टाइगर आएगा, एक प्रोविजन है डियर के लिए, ये कर सकते हैं, भाग सकती है, फिर ये भागने में कामयाब हो या नाकाम हो, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन जो ये प्लांट है, प्लांट को जो है ग्रेजर आ गया खाने के लिए, सीड खाने के लिए आ गया कोई बर्ड, प्लांट भाग नहीं सकता है। तो प्लांट्स करते हैं ज़्यादा फेस ये वाला इंट्रैक्शन, व्हाट वी कॉल इज प्रीडेशन, इसको ज़्यादा खतरा होता है बिकॉज ये मूव नहीं कर पाते हैं। तो विद रिजल्ट प्लांट्स ने इवॉल्व किए हैं कुछ खास एडेप्टेशंस, कुछ खास एडेप्टेशंस प्लांट्स ने इवॉल्व किए, जिनकी मदद से ये जो है ये प्रीडेशन समहाउ इट इज़ टू सम एक्सटेंट मिनिमाइज्ड, और ये इसको ऑलमोस्ट ख़त्म ही करता है। प्रीडेशन पॉसिबल नहीं होते कुछ प्लांट्स के अंदर जो ज़्यादा ये ग्रेजिंग फेस करते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे कुछ समय के बाद। फिलहाल आप लिखेंगे एक पॉइंट, ओके, प्लांट्स आर मोर प्रोन, दे आर मोर ससेप्टेबल, प्लांट्स आर मोर प्रोन टू प्रीडेशन, more prone to predation than animals, तो ये वजह क्या है? Why plants are more prone to predation than animals? Because plants, unlike animals, they cannot move when the predator basically tries to kill or tries to catch or tries to feed on them. Okay, तो plants को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है predation से as compared to animals. एक और चीज़ प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर करता है प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, इनको आपस में कंपटीशन से बचाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक प्रीडेटर है दिस कॉल्ड एज, क्या है नाम? PISASTR, पिसेस्टर। पिसेस्टर क्या है? इट इज ए स्टार फिश, इट इज ए स्टार फिश।
ओके, पिसेस्टर इज ए स्टारफिश। क्या देखा गया? साउथ अमेरिकन कोस्ट के अंदर, अगर मैं दिखाऊं, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, समंदर के साहिल के करीब, COAST कोस्ट, ओके, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के करीब क्या देखा गया? दिस पिसेस्टर विच इज ए प्रीडेटर, क्या है? ये एक प्रीडेटर है, इट इज ए प्रीडेटर। पिसेस्टर ए स्टारफिश इज ए प्रीडेटर, वेयर इट इज ए प्रीडेटर इन अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, समंदर के साहिल के करीब, अमेरिका के समंदर जो है वहां पे ये एक प्रीडेटर है, खास जगह पे। क्या देखा गया? जब इस प्रीडेटर को एक खास जोन से, एक खास हिस्से से पूरी तरह से रिमूव किया गया, दिस पिसेस्टर वाज आर्टिफिशियली इन ए स्पेसिफिक रीजन, इट वाज आर्टिफिशियली रिमूव्ड फ्रॉम द जोन, व्हाट रिजल्टेड इन बेसिकली मोर देन अबाउट 10 species of invertebrates, more than 10 species of invertebrates became extinct, ये पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गया, पूरी तरह से खत्म होना। तो पिसेस्टर जो है, पिसेस्टर एक स्टारफिश है, इट एक्ट्स एज ए प्रीडेटर, ये एक प्रीडेटर है। कहां? इन अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। क्या देखा गया? when this pisester starfish was experimentally removed from this specific zone, it was found that about 10 species of invertebrates became extinct within a year, एक साल के अंदर, within a year, एक साल के अंदर more than 10 species of invertebrates they became extinct due to interspecific competition। इन इन्वर्टिब्रेट्स के बीच आपस में इतना, क्योंकि जब हम पिसेस्टर को रिमूव करेंगे, ये करता है इन इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड, पिसेस्टर करता है इन इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड। ये कितने? 10 स्पीशीज है लगभग, फॉर एग्जांपल यहाँ ये इन पे फीड करता है। वो इन्वर्टिब्रेट्स इस पिसेस्टर के लिए प्रे है, ये ब्रीडर है, ये इन्वर्टिब्रेट्स इसके लिए प्रे है। जब हम इसको रिमूव करेंगे पिसेस्टर को, तो अब इनको खाने वाला कोई नहीं है, तो इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो ही नंबर बढ़ जाएगा, इनके बीच आपस में हो जाता है कंपटीशन, क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इनके आपस में लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, बाकी रिसोर्सेज के लिए, विद आपस में इतना मुकाबला होता है, इनके बीच कंपटीशन होता है। अबाउट 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स दे गॉट एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर ड्यू टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। आपस में इनके बीच कंपटीशन बढ़ गया, इसकी वजह से 10 स्पीशीज तकरीबन इन्वर्टिब्रेट्स के एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? दिस प्रीडेटर जो है, predator regulates the prey population. Predator regulates the prey population. It keeps the prey population under control, under check. Because if we remove the predator, for example, experiment जो हमने देखा गया है सिंपल अंदाज में, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में पिसेस्टर को रिमूव किया गया, जो कि एक प्रीडेटर है, इसको रिमूव किया गया, तो इट वाज फाउंड दैट अबाउट 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स गॉट एक्सटिंक्ट। इनके बीच पैदा हो गया इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इनका बीच मुकाबला इतना ज्यादा हो गया, 10 स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो गए वहां पे। तो ये पिसेस्टर का क्या काम था फिर? इन प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना, एक खास मतलब ये पॉपुलेशन साइज में इनको करता है चेक। इसके अलावा इनको बढ़ने नहीं देता है, जब क्योंकि ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? दिस पिसेस्टर ब्रैकेट में लिखो starfish which is a predator in American Pacific coast. Okay, by removing the pisester experimentally from a specific region, okay, काम करके more than 10 species of invertebrates got extinct, खत्म हो गए, got extinct within a year due to interspecific competition, ड्यू टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, आप वीडियो को वापस रिवर्स भी कर सकते हो ताकि आप लिख पाए आराम से। ओके, इसका मतलब क्या है? दैट इज, इसका मतलब क्या है फिर? दैट इज प्रीडेटर कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, अंडर चेक। ओके, ये इनको इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से बचाता है। ठीक है, ओके
ओके, नाउ अगर हम किसी नए स्पीशीज को लगाएंगे किसी नए जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, इफ एन एक्सोटिक स्पीशीज, इफ एन एक्सोटिक स्पीशीज क्या हो गए? फॉरेन स्पीशीज, फॉरेन, जो एक खास रीजन में नहीं पाए जाते हैं। एक्सोटिक स्पीशीज, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वैली में बनाना जो प्लांट है ये हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है। अगर हम बनाना प्लांट लाएंगे इंडिया के डिफरेंट स्टेट से, फिर लगाएंगे यहाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? वो बनाना प्लांट यहाँ इस रीजन के लिए बन जाएगा एक्सोटिक, फॉरेन बन जाएगा। ओके, तो अगर एक्सोटिक स्पीशीज करेंगे इंट्रोड्यूस इनटू ए न्यू जियोग्राफिकल एरिया, into a new geographical area, into a new geographical area. If an exotic species is introduced into a new geographical area, ये क्या दिखाते हैं? These exotic species they become invasive. They become invasive. Invasive हो गया, ये इनका फैलाव होता है ज़्यादा, ये नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतना बढ़ जाते हैं जो वहाँ पे नॉर्मली प्लांट्स ग्रो करते हैं इनको ये बहुत टाइट कंपटीशन देते हैं, इनको ये रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो इफ सम एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए जियोग्राफिकल एरिया, दीज एक्सोटिक स्पीशीज टर्न टू बी इन्वेसिव, दे ट्राई टू आउट कम्पीट द नेटिव स्पीशीज, जो वहाँ पे अपने स्पीशीज होते हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। ये एक्सोटिक स्पीशीज अगर एक किसी नए जियोग्राफिकल एरिया के अंदर लगाएंगे, ये क्या बन जाते हैं? इन्वेसिव, इनमें फैलाव ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, इनका ना मतलब एरिया स्पेस ज़्यादा लेते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं नए नए एरियाज को। असल में क्या होता है मसला, क्यों ये बढ़ जाते हैं? बिकॉज जो ही हमने एक एक्सोटिक स्पीशीज को नए जियोग्राफी के अंदर लगाया, इस वजह से इनके नए रीजन के अंदर इनके नेचुरल प्रीडेटर होते नहीं है जो इसको खाएगा। इसका तो प्रीडेटर वहां पे होगा। आपने एक प्लांट स्पीशीज को लाया फॉर एग्जांपल, तो विद रिजल्ट इसको वहां पे कोई प्रीडेटर होता जो इसको कंट्रोल में रखता था, लेकिन आपने सिर्फ प्लांट स्पीशीज को फॉर एग्जांपल लाया, इंट्रोड्यूस किया दूसरे किसी रीजन में, तो यहाँ पे इसका नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट है, तो विद रिजल्ट इसका फैलाव आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्वेसिव बन जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल है इसकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वहाँ एक स्पीशीज 1920s में किधर? ऑस्ट्रेलिया में 1920s में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्लांट स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम है PRICKLY, प्रिकली पेयर कैक्टस। प्रिकली पेयर कैक्टस, कैक्टस स्पीशीज जो हमारे यहाँ पे अपुंशिया होता है कैक्टस, इसी तरह एक कैक्टस की स्पीशीज प्रिकली पेयर कैक्टस, a cactus species. It was introduced into Australia way back in 1920s. जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, it created havoc. इसने बहुत खतरनाक फैलाव दिखाया, वहां पे तबाही मचाई इसने, इतना ये फैल गया। क्यों फैल गया? मैंने वही बोला, क्योंकि इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं लाया गया था वहां, तब उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, तो इसमें ये फैल गया पूरी तरह से, इसने फैलाव दिखाया अपना, ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसने ऑक्यूपाई किए। तो तब दिस प्रिकली पेयर कैक्टस इट वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली बाय बेसिकली ब्रिंगिंग its natural predator from its original habitat। तो जो इसको वहां पे जहां से लाया गया था, वहां से इसको लाया गया, अपना प्रीडेटर लाया गया, तब ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये प्रिकली पेयर कैक्टस इसको काबू में लिया गया, इसको कंट्रोल में लिया गया। तो इट वाज ओनली कंट्रोल्ड, शाबाश, बाय ब्रिंगिंग व्हाट? ओके, इट इज बाय ब्रिंगिंग इट इज नेचुरल प्रीडेटर। वो क्या है? वो असल में एक मॉथ है, एक इंसेक्ट है, कैक्टोब्लास्टस, एक मॉथ है, दफा करो इसके नाम को। ओके, इट इज नेचुरल
predator moth that was basically introduced into Australia. Then and only this what we call prickly pear cactus was brought under control. Okay, so exotic species if introduced into a geographical area, आप लिखेंगे exotic species if introduced into geographical area become invasive. Invasive का मतलब become invasive, that is they occupy huge areas of land. Okay, example, in 1920s prickly pear cactus was introduced into Australia which created havoc, इसे तबाही मचाई, which created havoc by spreading into millions of hectares of rangeland. Okay, ये लैंड फैल गए पूरे millions of hectares of land due to absence of its natural predator. Due to absence of its natural predator. Okay, full stop करके this prickly pear cactus was brought under control by a species of moth which was introduced into Australia. Okay, ये moth इसका natural predator है, उसी एरिया से लाया गया जहां से ये prickly pear cactus लाया गया. It was brought under control. तो ये दिखा रहा है कि प्रीडेटर के एब्सेंस में एक स्पीशीज कितना फैलाव दिखा सकती है, कितना फैल सकती है लैंड के अंदर. तो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल रिपोर्टेड इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, देखो एज ऑलरेडी सेड, मैंने आपको बोला प्लांट्स को ज्यादा खतरा है प्रेडेशन का देन एनिमल्स. मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूं. प्लांट्स को अगर बचना है इस प्रीडेशन से, इनको कुछ ऐसे तब्दीलियां लानी है, कुछ ऐसे एडाप्टेशंस इवॉल्व करने हैं जिससे ये ग्रेजर को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रेजर को कोई प्रॉब्लम करा सकते हैं. तो विद द रिजल्ट प्लांट्स ने कुछ एडाप्टेशंस इवॉल्व किए हैं जिनकी मदद से ये ग्रेजिंग को, ये इस प्रीडेशन को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं. मैं आपको समझाऊं. जो आप देख रहे हो, आपने सुना होगा नाम कैलोट्रोपिस. क्या है नाम? कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस एक वीड है, अनवांटेड प्लांट, व्हाट वी कॉल वीड. इस कैलोट्रोपिस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन में पुराने ज़माने में क्या होता है, इसने क्यों इवॉल्व किया होगा ऐसी अडेप्टेशन, क्योंकि इसको ग्रेजर, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग प्रेशर था, इसको बहुत ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स ग्रेजर्स खाते थे. विद द रिजल्ट इस कैलोट्रोपिस के अंदर तब्दीली आ गई. इसने प्रोड्यूस किए, ये प्रोड्यूस करता है, कैलोट्रोपिस प्रोड्यूसेस poisonous chemicals called glycosides. ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैलोट्रोपिस वीड, ये प्लांट है, कैलोट्रोपिस वीड प्रोड्यूसेस poisonous chemicals, toxic chemicals called cardioglycosides. जब भी कोई ग्रेजर, कोई हर्बीवर, कोई कैटल इस प्लांट को फीड करेगा, इस प्लांट को ग्रेज करेगा, ब्राउज करेगा, खाएगा इसके पत्ते या इसका प्लांट का पार्ट खाएगा, उस एनिमल को क्या, या तो वो सिक, द एनिमल विल बिकम सिक, वो बीमार हो जाएगा, और उसको वोमिट हो सकता है, और इन सम इंस्टेंसेस उसका लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में उसमें कमी आ जाएगी, और इवन द ग्रेजर कैन गेट किल्ड because of these cardioglycosides. Calotropis weed produces highly poisonous cardioglycosides which makes the grazer or which makes the predator sick, or even predator may get killed in some instances. Okay, so that's why you will never see any grazer ग्रेजिंग दिस प्लांट कैलोट्रोपिस, क्योंकि इसने इवॉल्व किया है मैकेनिज्म, इसने कार्डियोग्लाइकोसाइड्स केमिकल्स प्रोड्यूस किए हैं. कोई ग्रेजर जरूरत नहीं कर सकता है इसके पास जाए, इसके प्लांट के पार्ट को, इसके लीव्स को खा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसने इवॉल्व किया है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स इसने प्रोड्यूस किए हैं केमिकल्स, जिनकी मदद से ये ग्रेजर्स को बहुत दूर रखते हैं. ओके, एक और चीज, ये कैलोट्रोपिस की बात है. अब कुछ प्लांट्स आप देखा होगा, कुछ प्लांट्स तो स्पाइनस बनाते हैं,
कुछ प्लांट्स स्पाइनस बनाते हैं टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स बनाते हैं स्पाइनस इन ऑर्डर टू, ओके, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिफेंस, इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स या ग्रेजर्स। हर्बीवोर्स मीन्स ग्रास ईटर्स, ग्रेजर जो ग्रास खाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ स्पाइन्स और वी से थॉर्न्स, it's also an adaptation evolved by plants against, it's a sort of defense mechanism against herbivores, okay। और जो आप देख रहे हो प्लांट्स करते हैं प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लाइक प्लांट्स करते हैं प्रोड्यूस कैफीन, कैफीन अल्कोलाइट, ओके। इसी तरह प्लांट्स करते हैं प्रोड्यूस ओपियम, ओपियम। प्लांट्स कर सकते हैं प्रोड्यूस निकोटीन, निकोटीन। क्यों प्लांट बनाता है, क्यों प्लांट बनाता है एटसेट्रा, क्यों प्लांट बनाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? ये प्लांट कैफीन, ओपियम, निकोटीन एटसेट्रा, दीज ऑल metabolites, these are secondary metabolites, these are all produced by plants only to get rid of grazers। ग्रेजर से बचने के लिए सारा कुछ प्लांट करता है, ग्रेजर से बचने के लिए, ओके। कैलोट्रोपिस, it has evolved basically chemical what we call cardioglycosides which makes the predators sick or sometimes they can get killed, okay। Spinous or thorns, it's also defense against herbivores, grazers। One more, caffeine, opium, nicotine, these are the secondary metabolites produced by plants against whom? Grazers, against grazers। और एक और बात, एनिमल्स की एक बात करेंगे, एनिमल्स की बात देख लीजिए। एनिमल्स की क्या बात है, एक बटरफ्लाई है दैट्स कॉल्ड मोनआर्च बटरफ्लाई, मोनआर्च बटरफ्लाई, monarch butterfly, monarch butterfly। This monarch butterfly is highly distasteful to its predator। इसमें कोई टेस्ट नहीं इस बटरफ्लाई में। monarch butterfly जो है it is highly distasteful, it is highly distasteful to its predator, it is highly distasteful to its predator। क्यों ये distasteful है? देखो इस बटरफ्लाई को भी खाते थे डिफरेंट बर्ड्स, इसको कंज्यूम करते थे। बटरफ्लाई इंसेक्ट है तो अल्टीमेटली आर्थ्रोपोड्स में आता है, इसको आराम से बर्ड खा सकता है, लेकिन इसने क्या किया है, इस मोनआर्च बटरफ्लाई ने अपने बॉडी के अंदर केमिकल जमा किए। कैसे? इट्स हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर। ये जब होता है कैटरपिलर, जब मोनआर्च बटरफ्लाई होता है कैटरपिलर, यू नो कैटरपिलर, लार्वे, लार्वे क्यों भी आसान, वर्म लाइक जब स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे ये वर्म लाइक होता है, वर्म्स की तरह, जिस तरह हमारे पास नो वी हैव दोज स्लिक मॉथ, उसका भी होता है कैटरपिलर स्टेज, ओके। इस तरह लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में क्या करता है, लार्वल स्टेज में ये मोनआर्च बटरफ्लाई ये करता है फीड, ये करता है फीड, लार्वल स्टेज में ये फीड करता है एक पॉइजनस वीड के ऊपर, इट फीड्स ऑन पॉइजनस वीड, पॉइजनस वीड। ये पॉइजनस वीड में जो केमिकल्स होते हैं वो डेंजरस नहीं होते इस बटरफ्लाई के लिए, लेकिन जब इस बटरफ्लाई के ऊपर कोई फीड करेगा, कोई खाएगा इसको, तो उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको दे प्रेडेटर विल फील नो सिक, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मोनआर्च बटरफ्लाई accumulating these poisonous chemicals in its body when it feeds on some poisonous weeds during its larval stage, this butterfly becomes distasteful to its predator। That's why predators will normally avoid eating these monarch butterflies, okay। monarch butterfly ने अपने बॉडी के अंदर केमिकल जमा किया है, टॉक्सिक केमिकल जमा किए हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर। लेकिन ये केमिकल कहाँ से लाता है? ड्यूरिंग इट्स लार्वल स्टेज इट फीड्स ऑन पॉइजनस वीड्स एंड accumulates those chemicals in its body, but these chemicals are not toxic to butterfly itself but are toxic to the predator which basically feeds on these monarch butterfly। Thus predators will normally, you know, predators will normally avoid the
आई मीन ईटिंग ऑफ दीज मोनार्च बटरफ्लाइज। तो एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया मोनार्च बटरफ्लाई ने ताकि ये इसको प्रीडेशन से खुद को बचा पाए, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे कौन कौन से एडेप्टेशंस इवॉल्व किए हैं डिफरेंट एनिमल्स ने टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय प्रेडेटर्स। हम देखेंगे एडेप्टेशंस बाय प्रेज। जो प्रे पॉपुलेशन है उन्होंने कौन कौन से एडेप्टेशन इवॉल्व किया? एडेप्टेशन बाय प्रेज अगेंस्ट predators, अगेंस्ट प्रीडेटर्स। क्या क्या एडेप्टेशन इवॉल्व किए हैं? 3 तरीके के एडेप्टेशन आपको बोलूंगा, 3 तरीके के एडेप्टेशंस। पहली एडेप्टेशन दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्रिप्टिक कलरेशन। समझाऊंगा। इसको हम एक और नाम बोलते हैं कोमोफ्लाज। एक ये है। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है एपोसिमेटिक कलरेशन है ये, जिस तरह यहां पे लिखा है क्रिप्टिक कलरेशन, एपोसिमेटिक कलरेशन। यहां स्पेस कम है। ओके, ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं वार्निंग कलरेशन भी, एक और नाम इसका वार्निंग दे रहा है, वार्निंग कलरेशन, वार्न कर रहा है किसी को, प्रीडेटर को। एक और दैट्स कॉल्ड एज मिमिक्री। क्या है? मिमिक्री। 3 तरीके के एडेप्टेशन इवॉल्व किए हैं प्रेज ने टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय द प्रीडेटर्स। नंबर फर्स्ट इज क्रिप्टिक कलरेशन और कोमोफ्लाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्रिप्टिक मीन्स टू हाइड, छुपना, किस चीज से दूर रहना, नजर ना आना, क्रिप्टिक। ओके, क्रिप्टिक कलरेशन देखो, ऐसा कलर आ जाता है जिसकी मदद से छुप जाता है। छुप जाएगा किससे? प्रीडेटर से छुप जाएगा। ये अपना जो कलर होता है बॉडी का, ये अपना कलर बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मैच करता है। कोमोफ्लाज क्या होता है? इन क्रिप्टिक कलरेशन द प्रे, यस, प्रे अपना कलर जो है चेंज करता है एंड रिजेम्बल्स इट इज बैकग्राउंड। पे resembles it is background. In cryptic coloration the prey resembles its background, और प्रीडेटर को नजर नहीं आ जाएगा। अब प्रे क्यों नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये प्रे का जो कलर है बिल्कुल बैकग्राउंड के जैसा है। विद रिजल्ट प्रीडेटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लोकेट नहीं कर पाएगा प्रे कहां पे है। ठीक है, गो इन केस ऑफ क्रिप्टिक कलरेशन द प्रेज रिजेंबल इट इज नेचुरल बैकग्राउंड, thus अवॉइड प्रिडेशन। ओके, ये किन में पाया जाता है? इट इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। कुछ फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? ये अपना कलर जो है, या ये फ्रॉग्स जो इंसेक्ट्स है अपना कलर मैच करते हैं किसके साथ? बैकग्राउंड के साथ। विद द रिजल्ट दे अवॉइड प्रीडेशन। दिस व्हाट वी कॉल इज क्रिप्टिक कलरेशन। दूसरा है एपोसिमेटिक कलरेशन, वार्निंग कलरेशन। ये क्या है? इसमें देखो, इसमें क्या होता है? ये तो इसका उल्टा है, इट्स अपोजिट ऑफ इट। इसमें ये छुप जाता था, इसमें छुप जाता था, पूरी तरह से ये रिजेंबल होता था अपने बैकग्राउंड के साथ, और प्रीडेटर को नजर नहीं आ पाता था ये प्रे कहां पे। लेकिन यहां प्रे जो है, प्रे जो है, प्रे बहुत ज्यादा कलरफुल बन जाता है। इट बिकम्स ब्राइट कलर, ये कलरफुल बन जाता है। ये बहुत ज्यादा कलर दिखाता है, कलर करता है डेवलप, और ये आराम से लोकेट होता है किसके अंदर? इस बैकग्राउंड में। ये आराम से नजर आता है, प्रीडेटर को आराम से नजर आता है प्रे। लेकिन जो ये नजर आ जाएगा, इसमें चूंकि कलर होता है बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्ड, इसकी खतरनाक वार्निंग कलरेशन, यानी कि ये वार्न करता है कि मेरे अंदर इतने ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स, अगर आपने
कोशिश की मुझे खाने की तो यू विल फील सिक और अल्टीमेटली यू विल डाई। तो ये क्या करता है, एक वार्निंग देता है, वार्निंग देता है कि अगर आपने कोशिश की मुझे खाने की, देखो केमिकल्स, चमकीलापन जो मेरे बॉडी के अंदर इज बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड, और आपने कोशिश की खाने की, यू विल फील सिक, यू विल अल्टीमेटली डाई। ओके, यहां पे क्या होता है, प्रे बिकम्स कलरफुल, prey becomes colorful and sends warning to its predator, that I have toxic chemicals, that the prey contains toxic chemicals, so that to avoid it is eating and all that। ये किन में पाया जाता है, ये पाया जाता है बीज में और वेस्प्स में। बीज और वेस्प्स ये क्या होते हैं, ये बहुत कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, आपने देखा होगा, तो आराम से लोकेट हम कर पाते हैं। लेकिन प्रीडेटर बर्ड्स बहुत मोहतात रहते हैं जब वो इनको खाएंगे, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर जो कलर आता है, इट इज अ वार्निंग साइन फॉर द प्रीडेटर दैट इफ यू ट्राई टू ईट you will feel sick or you will die। okay, this is another, इसका अपोजिट, ये यहाँ पे छुप जाता है लेकिन ये पूरा नजर आता है, लेकिन फिर दोनों सूरत में बच जाता है प्रीडेशन से। एक और क्या है, मिमिक्री, एक और है मिमिक्री। आप देखिए मिमिक्री में क्या है, यहां पे मैं करूंगा इस्तेमाल ये मिमिक्री में। देखो मिमिक्री में क्या है, मिमिक्री में होता है एक प्रे दूसरे प्रे को करता है कॉपी। एक देखो यहां पे प्रे ने बैकग्राउंड को कॉपी किया, ओके, यहां पे प्रे ने बहुत ज्यादा कलर अपने अंदर प्रोड्यूस किया, ओके, लेकिन यहां एक प्रे स्पीशीज दूसरे प्रे को कॉपी करता है ताकि एक सिग्नल जारी करे, ये किसके लिए, प्रेडेटर के लिए, कि मैं वो नहीं हूं जिसको आप ढूंढ रहे थे। मैं आपको समझाऊंगा बड़े एग्जांपल से। मिमिक्री में क्या लिखेंगे हम, एक पॉइंट अगर लिखेंगे, मिमिक्री it is the resemblance of one prey species with the another to avoid predation। मिमिक्री में देखो जिस तरह आप करते हैं ना, कभी कभार आप करते हैं टीचर्स की मिमिक्री, यानी कि आप कोई टीचर कोई एक्टिविटी करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ क्लासरूम में कभी कभार, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, आप भी इसको कॉपी करते हैं, या यू नो दैट इनिटेटन, यू रिमेंबर इनिशिएशन को हम पढ़ते हैं बीच में, इनिटेटन, तो दैट इज आप कॉपी करते हैं उस चीज को। That's also you do a sort of mimicry, mind mimicry। Okay, mimicry में क्या होता है, a prey population, a prey species basically, one prey species, it copies another prey species to avoid predation। कैसे, एक करेगा दूसरे को कॉपी, इससे क्या फायदा है, मैं आपको समझाऊंगा। इसके दो किस्में हैं, हम लिखेंगे मिमिक्री में एक पॉइंट, देखो here one prey species resembles another species to avoid predation। Here one prey species resembles another species to avoid predation। ये कैसे पॉसिबल है, एक प्रे स्पीशीज दूसरे को कॉपी करेगी फिर वो बच जाएगा। इसके दो तरीके हैं, शाबाश, हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे इसके दो तरीके हैं। किसके, मिमिक्री के दो तरीके हैं। एक तरीका इसका, एक तरीका मिमिक्री का, एक तरीका, और यहां से दूसरा तरीका। एक तरीका इसका दैट्स कॉल्ड एज बैटिसन मिमिक्री। क्या है, बैटिसन मिमिक्री। दूसरा है मिल्यूरियन मिमिक्री। बैटिसन मिमिक्री एंड मिल्यूरियन मिमिक्री। मिमिक्री में एक स्पीशीज, एक प्रे स्पीशीज दूसरे को करते कॉपी। अब देखो बैटिसन मिमिक्री में क्या होता है और मिल्यूरियन मिमिक्री में क्या होता है। इन बैटिसन मिमिक्री वन पैलेटेबल मतलब गो विच इज डिलीशियस, विच इज स्वीट, से मजा आएगा खाने में। वन पैलेटेबल प्रे इट gains advantage by resembling another non-palatable prey।
it resembles non-palatable prey. मैंने बोला ना अभी मिमिक्री में एक प्रे दूसरे को कॉपी करता है। यहां देखो, a palatable prey which is delicious, which is sweet in taste, इसको आराम से प्रीडेटर खाएगा। लेकिन दूसरा प्रे होता है इसकी विसिनिटी में ही विच इज नॉन पैलेटेबल, जिसको प्रीडेटर बिल्कुल खाता नहीं है कभी। तो ये क्या करता है, a palatable prey it resembles to another non palatable prey, ये इस जैसा दिखता है। और जब इस जैसा दिखेगा तो प्रीडेटर को धोखा लगेगा कि ये वो नहीं जिसको मैं ढूंढता हूं, isn't it? तो मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से। आपको पता है, ओके, अभी मैंने बोला आपको मोनॉर्च बटरफ्लाई, वो क्या है, नॉन पैलेटेबल, डिसटेस्टफुल। एक और है वाइसरॉय बटरफ्लाई। क्या है, वाइसरॉय बटरफ्लाई, इट इज पैलेटेबल प्रे। ये मिलता है किसके साथ, मोनॉर्च बटरफ्लाई के साथ, मोनॉर्च बटरफ्लाई, because this monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of toxic chemicals in its body. वाइसरॉय बटरफ्लाई ये कॉपी करता है किसको, मोनॉर्च बटरफ्लाई को। ओके, तो जो ही प्रीडेटर आ जाएगा इसको लगेगा नहीं ये वाइसरॉय बटरफ्लाई नहीं, ये मोनॉर्च बटरफ्लाई, इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल, इसको खाने की कुछ नहीं करेगा, तो इस सूरत में बच जाएगा। अब मिमिक्री में जो ऑर्गेनिज्म दूसरे को कॉपी करेगा, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कॉपी कर रहे हो, मैंने कोई एक्शन की, आपने इसको कॉपी किया, आप बन गए मिमिक। क्या बन गया, मिमिक। मैं बन गया मॉडल, मैं बन गया आप लोगों का मॉडल। कभी क्या बोलते हैं ना, वो मेरा रोल मॉडल है, क्योंकि आप उसको कॉपी करते हो। वही यहां पे इन मिमिक्री वन प्रे स्पीशीज विच रिजेम्बल्स अनदर स्पीशीज इज कॉल्ड एज मिमिक। मिमिक, यहां पे मिमिक कौन है, यहां पे वाइसरॉय बटरफ्लाई मिमिक है। किसके साथ मिल रहा है, किसकी कोशिश कर रहा है लेने की, ना आई मीन साइज एंड ऑल दैट, व्हाट वी कॉल्ड कलर। हाँ, मोनॉर्च बटरफ्लाई, मोनॉर्च बटरफ्लाई यहाँ पे मॉडल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी मिमिक्री कर रहे हो, मैं मॉडल हूं क्योंकि आप मुझे कॉपी कर रहे हो, आप बन गए मिमिक। इसी तरह यहाँ पे वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपीज मोनॉर्च बटरफ्लाई, वाइसरॉय बटरफ्लाई इज ए मिमिक एंड मोनॉर्च बटरफ्लाई इज द मॉडल। क्या लिखेंगे आप मिमिक और इसमें, मिमिक इज द ऑर्गेनिज्म और इट इज द प्रे विच रिजेम्बल्स अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज मॉडल। मॉडल इज द ऑर्गेनिज्म दैट्स इमिटेटेड बेसिकली, जिसको कॉपी किया जाता है। ओके, फिर दूसरा किस्म क्या है, दूसरा किस्म है मिल्यूरियन मिमिक्री। मिल्यूरियन मिमिक्री क्या होता है, मिल्यूरियन मिमिक्री में होता है दो डिस्टेस्टफुल, दोनों डिस्टेस्टफुल है, दोनों नॉन पैलेटेबल है, टू नॉन पैलेटेबल प्रेज, ये एक दूसरे को कॉपी करते हैं, एक दूसरे को करता है, वो करता है इसको कॉपी, विद रिजल्ट दोनों सूरत में धोखा लग जाएगा प्रीडेटर को। तो अल्टीमेटली दे विल अवॉइड ग्रेजिंग, दे विल अवॉइड सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज प्रीडेशन। Two non-palatable species, two non-palatable preys, they resemble one another. एक दूसरे को मैच कर रहा है, वो इसको कॉपी कर रहा है। एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, देखो क्वीन बटरफ्लाई, क्वीन बटरफ्लाई मिलती है मोनॉर्च बटरफ्लाई के साथ और वाइस वर्सा। मोनॉर्च बटरफ्लाई दोनों है, दोनों क्वीन बटरफ्लाई हो या मोनॉर्च बटरफ्लाई, दोनों है नॉन पैलेटेबल। ये इसको कॉपी करता है, ये इसको कॉपी करता है, ठीक है। दोनों सूरत में ये धोखा देंगे अपने प्रीडेटर को, या अपने प्रीडेटर को, या अपने प्रीडेटर को धोखा देगा। अल्टीमेटली दे विल अवॉइड दिस ईटिंग, दे विल अवॉइड दिस प्रीडेशन, ठीक है। सो दीज आर द एडेप्टेशंस दैट हैव बीन इवॉल्व्ड बाय दीज प्रेज टू अवॉइड प्रीडेशन, ठीक है। वन वी कॉल्ड एज क्रिप्टिक कलरेशन, अपने बैकग्राउंड के साथ मैच होना, एंड दैट्स कॉल्ड एपोस्टिमेटिक कलरेशन, ब्राइट कलर्ड दिखना, ताकि एक प्रीडेटर को एक वार्निंग सेंड की जाए कि अगर आपने कोशिश की खाने की तो यू विल फील सिक और यू विल गेट किल्ड। मिमिक्री, एक प्रे स्पीशीज दूसरे प्रे स्पीशीज को कॉपी करती है, तो ये दो तरीकों से हो सकता है, इट कैन बी बैटिसन और इट कैन बी मिल्यूरियन। हियर
palatable prey, it resembles non-palatable one. Example is viceroy butterfly, it copies monarch butterfly. Or here two non-palatable species, they can copy each other, like queen butterfly and monarch butterfly. This is all about predation. Hope you understood it. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे हम कंपटीशन के बारे में. ओके बेटा, थैंक यू सो मच. रिवाइज करो चीज़ों को साथ साथ. इंशाल्लाह दीज हार्ड टाइम्स दे विल नॉट लॉस्ट लॉन्ग. इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा फिर से इंशाल्लाह हम क्लासरूम में मिलेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.